आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन कार्यालय में रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन। मुख्य अतिथि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रक्तवीरों को किया सम्मानित। संस्थापक दिवस के अवसर पर टाटा स्टील ने विष्णुपुर में विज्ञान प्रदर्शनी का किया आयोजन। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के कार्यालय में शनिवार को रक्तदाता सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रहे। उन्होंने अपने हाथों से 8 रक्तदाता वीरों को सम्मानित किया। इस मौके पर डीसी अनन्या मित्तल, एसएसपी किशोर कौशल, प्लांट हेड रविंद्र कुलकर्णी, टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह, महामंत्री आरके सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि रक्तदान करना काफी पुण्य का काम है, इसके लिए हमें रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन में 3 मार्च को विशाल रक्तदान समारोह भी है। टाटा मोटर वर्कर्स यूनियन हर साल जमशेदजी नुसरवान जी टाटा की जयंती के मौके पर रक्तदान शिविर आयोजित करता है। रविवार को यह शिविर आयोजित किया जाएगा। इससे पहले आज रक्तदाता सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें 100 से ज्यादा बार रक्तदान कर चुके रक्तवीरों को सम्मानित किया गया। Able to participate with the people who want to live for the others. What more you can donate than the blood? So it is a great day in my life. Yes, in his welcome speech he said the governor's presence is good. The governor is also very proud to be with you. That is what I want to say in this way. The dignitaries on the dais, Sri Ananya Mittal ji, sabko johar. It is my pleasure to pay the homage to the Jamshedji Nusrwan ji Tata, the legendary father of Indian industry. Why he has been known as the father of the Indian industry? It's not that easy today. Yes, it was on that day. You can start any industry today, you can buy any know-how today, you can do any business today if you have the capital. In his days, no monopoly company will allow you to start an industry. Whatever may be your capital capacity, still you cannot. You will not get the know-how, you will not get the any scientific methods also you cannot get. In those days, such a remote place like today, it is a very good place. That is different story. When it was started, the industry in such a remote place, landlocked place, it's a great effort as far as the Jamshedji has done for the Indian industry. My dear friends, I will tell you one thing. The labor welfare and the industrial welfare are not two different things. It is the two sides of the same coin. For sustainability, the industry has to take care of the industrial workers' welfare. The workers have to take the industry's welfare. That is what I have seen in the Tata's management. I really compliment to every one of you for making this possible in our country. Nothing is like that. Somebody has to take care of you and you have to take care of them. That is where the success story goes. The Tata Motors, Tata Steel, all are very successful only because of this policy. If one side is not taken care by the other, then it is not exchangeable. Organized this camp and around 1200 plus bottles were donated. In the next year around 1400, then 1700, and this year the target is to reach 2000. So let's give a big hand to the union team for really driving this cause and this noble cause for the society. At this also juncture, I would say that Tata Motors every year generally donates close to 6,000 bottles of blood to the society,
and has won lot of awards from Red Cross Society, from Jamshedpur Blood Bank, Jharkhand AIDS Control Society and Voluntary Blood Donations Association. So at this juncture, I would like to thank our Honorable Governor of Jharkhand to be here in this occasion and motivate all of us to continue to do this noble cause for the society. टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी नौशीरवान जी टाटा के जन्म दिवस पर 3 मार्च को हम लोग यूनियन ऑफिस में जो ब्लड डोनेशन करते हैं, उस ब्लड डोनेशन में आज 2 मार्च को ही गवर्नर साहब आए और टाटा समूह के सभी रक्तदाताओं का हौसला बुलंद करने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए आया हमारे लिए। और जो लोग 100 टाइम ब्लड डोनेशन किए हैं, ब्लड डोनेशन किए, वैसे लोगों को अपने हाथ से सम्मानित किए। हम लोगों को बहुत खुशी की गवर्नर से हमारे बीच आए और हम लोगों का जो 3 मार्च को चौथी बार टाटा मोटर्स की तरफ से जो रक्तदान होना है, उसमें हम लोगों के रक्तदाताओं को अप्रिशिएट किए, हौसला बुलंद किए, हम लोगों का हौसला बुलंद किए। उसके लिए मैं राज्यपाल महोदय और पूरे प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा और टाटा ग्रुप हमारे मैनेजमेंट को जो हमेशा ऐसे रक्तदान से करवाने हम लोगों को सहयोग करके अप्रिशिएट करते हैं, सारे मैनेजमेंट के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। बिष्टुपुर के SNTI में वैज्ञानिक प्रदर्शनी में वैज्ञानिकों ने एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट पेश किए। AI सॉफ्टवेयर ने बताया कि किस तरह से 1 करोड़ रुपए से कम कर 2 लाख रुपए की जा सकती है औद्योगिक प्रतिष्ठान की लागत। संस्थापक दिवस को लेकर टाटा स्टील ने बिष्टुपुर में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया। शनिवार को आयोजित इस विज्ञान प्रदर्शनी का टाटा स्टील के MD TV नरेंद्र ने उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में आए वैज्ञानिकों ने 40 स्टॉल लगाए थे। इन सभी स्तर पर एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट पेश किए गए थे। उद्घाटन करने के बाद टाटा स्टील के MD और अन्य अधिकारियों ने सभी स्टॉल का जायजा लिया, स्टॉलों पर लगे वैज्ञानिक प्रोजेक्ट देखे। MD TV नरेंद्रन के गृह राज्य से आई एक महिला वैज्ञानिक ने एक AI सॉफ्टवेयर पेश किया है। यह सॉफ्टवेयर बताता है कि इंडस्ट्री में किस तरह लागत कम की जा सकती है। 2 करोड़ रुपए से कम लागत को 2 लाख रुपए तक लाया जा सकता है। टाटा स्टील के अधिकारियों ने बताया कि जमशेदपुर के छात्र छात्राएं सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक इस प्रदर्शनी में आकर वैज्ञानिक प्रोजेक्ट देख सकते हैं। यह प्रदर्शनी 3 मार्च को भी देखी जा सकती है। कुल 44 स्टॉल्स हैं, उसमें से 29 स्टॉल्स जो है वो हमारे कार्डर ट्रेनिंग्स का उस पर काम किए हैं और जो बाकी के स्टॉल्स हैं वो हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ किए हैं और कुछ हमारी ग्रुप कंपनीज़ का है और IIT खड़गपुर का भी है। तो बाहर के लोग भी हैं और 29 ऐसा स्टॉल्स है 44 में जो हमारे कार्डर ट्रेनिंग्स ने बनाए। तो कंपनी जो टाटा स्टील है और टाटा स्टील की दूसरी डिपार्टमेंट्स हैं, बाहर की कंपनीज़ में टाटा पावर की स्टॉल है और IIT खड़गपुर की स्टॉल है बाहर से, और बाकी जो है हमारे टाटा पिगमेंट्स का स्टॉल है और बाकी हमारे डिविजन्स टाटा मेटालिक्स से सबके स्टॉल्स भी है। एग्जीबिशन 5 तारीख को बंद होगा। ये एग्जीबिशन लगाने का जो मेन कारण है कि यहाँ जो लड़के आते हैं, कार्डर ट्रेनीज आते हैं, तो उनको जो हम पढ़ाते सिखाते हैं, आप देखेंगे उनको नॉर्मली इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स पढ़ाते हैं प्लांट के लिए रेडी करने के लिए। ये प्रोजेक्ट ऐसा है जिससे वो प्रोजेक्ट जब बनाते हैं तो प्लांट का जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है उस पर काम करते हैं। उसके काम करने के प्रोसेस में वो जो भी सीखते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के बारे में, उसका एप्लीकेशन समझ पाते हैं। तो ये प्रोजेक्ट है एक तरीके से उनके लिए एक्शन लर्निंग प्रोजेक्ट, जो सिर्फ प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं है, बट हम लोग इसको प्लांट से कनेक्ट कर दिए कि जो भी हमारे जो रियल टाइम इश्यूज़ है, ऑपरेशनल कंसर्न्स है, उसको कैसे इस पर काम करें बच्चे और प्रोजेक्ट भी बनाएं। हमारे संस्थापक की 150वीं जयंती पर हम कल्पना करते हैं एक टेक संचालित कल सभी के लिए, जो कि हमारे कर्मचारियों को सशक्ति, हमारे उपभोक्ताओं को बेहतरीन अनुभव एवं हमारी धरती को सुरक्षा देती है। चांडी थाना क्षेत्र के बामुंडी गांव के पास शनिवार के दोपहर करीब 12 बजे 2 बाइक सवार की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 बाइक में सवार कुल 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान निमडी के
केतुंगा निवासी प्रभाष महतो व ईचागढ़ के गोरांग कोचा निवासी कक्षा 9वीं का छात्र साफिक साई, शाहिल अंसारी व दानिश अंसारी है। दुर्घटना के बाद तुरंत स्थानीय लोगों ने पास के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां प्रभाष महतो की गंभीर स्थिति को देखते हुए एमजीएम रेफर कर दिया गया। वहीं तीनों छात्र का इलाज काटिया स्थित नर्सिंग होम में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मध्य विद्यालय चैनपुर में कक्षा 9वीं की परीक्षा का परीक्षा केंद्र बनाया गया। गोरांग कोचा के 3 छात्र कक्षा 9वीं की परीक्षा देने एक बाइक पर तीनों सवार होकर तेज रफ्तार से आ रहे थे। तभी विपरीत दिशा से केतुंगा गांव निवासी प्रभाष महतो को सीधे टक्कर मार दी, जिससे प्रभाष महतो के एक पैर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घटना के बाद चांडिल पुलिस घटना स्थल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर दलमा के शीर्ष पर विराजमान बूढ़ा बाबा की पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालु काफी उत्साहित है। ज्ञात हो कि आगामी 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। इसको लेकर शिव भक्तों में अपार खुशी और उत्सव का माहौल है। इस दिन सभी शिवालयों में भक्तों की टोली पूजा करने के लिए उमड़ पड़ी है। ऐसे में कोल्हान प्रमंडल अंतर्गत सबसे ऊंचाई पर विराजमान शिवालय में लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। उक्त पूजा स्थल तक लोग अपने 2 पहिया अथवा 4 पहिया वाहनों की मदद से पहुंच सकते हैं। आम दिनों में वन विभाग द्वारा दलमा वन प्राणी अभ्यारण्य के चेक नाका पर 2 पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक रहता है, जबकि 4 पहिया वाहन 600 रुपए शुल्क देकर प्रवेश दी जाती है। वहीं मीडिया से खास बातचीत के दौरान आरएफओ दिनेश चंद्रा ने कहा कि महाशिवरात्रि के अवसर पर 3 दिन 7, 8 और 9 मार्च को 2 पहिया वाहनों को विशेष छूट दी जाएगी। इस दौरान विभाग 2 पहिया वाहनों से पुराना शुल्क 20 रुपए लेकर जाने दिया जाएगा। शिवरात्रि दलमा में हो रहा है, उनके श्रद्धालुओं के लाखों की संख्या में आते हैं। वैसे तो हम लोग का 2 व्हीलर बंद है, लेकिन 7, 8, 9 ये केवल श्रद्धालुओं के लिए मुक्त रहेगा। फिर उसके बाद जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी चलेगी। श्रद्धालु उस दिन 2 पहिया वाहन से 2 पहिया वाहन से जो शुल्क देके जा सकते हैं ऊपर। ये व्यवस्था केवल मंदिर के और शिवरात्रि के चलते किया गया है। आने जाने के लिए हैगा, लेकिन जो उनका शुल्क है यहाँ पर गेट पर शुल्क के साथ बने वो जा सकते हैं, पूजा पाठ करके आ सकते हैं। जो व्यवस्था है पहले जो बाइक में 20 रुपया था, प्रति व्यक्ति 2 रुपया था, और जो जनरल जो 4 व्हीलर है 600 रुपया, वो तो रहेगा ही। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो बैंड है वो प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन हम लोग जैसे जो बोतल ले आते हैं तो उसके एवज में कुछ राशि हम लोग रख लेते हैं, है ना, और जब वो खाली बोतल ला के दे देते हैं हम राशि को लौटा दिया जाता है। गारंटी के रूप में हम लोग कुछ रख लेते हैं राशि जो भी जाते हैं। अब मान लिया कोई 10 गो बोतल ले गया तो 10 बोतल का हम लोग 50 रुपया 100 रुपया रख लेते हैं, और जब आते हैं उनकी पैसा लौटा करके खाली बोतल हम लोग रख लेते हैं। दोनों का सुविधा होता है, वो बेचारा गंदा भी नहीं करता है और बोतल भी आके जमा हो जाता है। तो के लिए व्यवस्था यही है कि जो जैसे कि मान लिए कि अब यहाँ से रात्रि में है, हम लोग यहाँ तो लाइट का व्यवस्था रहता है, लेकिन अब यहाँ से 20-21 किलोमीटर तक का व्यवस्था तो नहीं है रात में। अब मान ली पिंडिया बेड़ा में लाइट का हम लोग व्यवस्था करते हैं, मंदिर का है, तो व्यवस्था जैसे पहले होता था वो सही है। जमशेदपुर के उलीदी थाना अंतर्गत ओल्ड पुरलिया रोड में देर रात्रि सड़क दुर्घटना में बाइक सवार भालूबासा निवासी युवक की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार अमित तिवारी भालूबासा का रहने वाला है और राशन दुकान चलाता है। पिछले कुछ महीने से वह आजाद नगर क्षेत्र में ही रहता आ रहा है।
देर रात 2:30 बजे के लगभग वह बाइक से घर आ रहा था। इसी बीच चाणक्यपुरी कॉलोनी के समीप सड़क पर रखे ईंट के ढेर से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद पुलिस उसे MGM अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि सुबह पुलिस के द्वारा सूचना दी गई कि घटना घटित हुई है। जब वे अस्पताल पहुंचे तो वह मृत अवस्था में पड़ा था। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि इसके साथ एक और युवक भी था, लेकिन वह इलाज कराकर लौट गया है, फिर वह वापस नहीं आया। फिलहाल पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच में जुट गई है। ओल्ड पुरलिया रोड चाणक्यपुरी के पास की घटना है। रात के 2:15 बजे के आसपास की पता चला कि मोटरसाइकिल से जा रहा था, ईंटा का ढेर लगा हुआ था, उसी मोटरसाइकिल घुस, जिसके कारण उसका मृत्यु हुई। तो थाना से फ़ोन आया तो हम लोग भाग के आए, तो अज्ञात हालत में MGM में पड़ा हुआ था। तो फिर आज़ाद नगर थाना गए तो वहाँ से सारा कुछ क्लियर हुआ क्या हुआ। भालू बसा में रहता है ये, उसका नाम अमित तिवारी हुआ, पिताजी का नाम जितेंद्र तिवारी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।